So now today we are going to discuss about this topic. The topic name is angle sum property of a triangle. So we know that the sum of the angles of a triangle is equal to 180 degree. If the sum of all the three angles of a triangle is 180. किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, उसके एंगल्स का जो सम होता है, तीनों एंगल का सम ऑलवेज is equal to 180 degree होता है. So that property is called as angle sum property. So today we are going to prove it. Why it is 180 degree? 180 degree क्यों होता है? So now look at this theorem number 6.7 here. This theorem says that the sum of the angles of a triangle is 180. So now let us prove it. So the sum of the angle of a triangle is 180 degree. So let us look at the proof. So let us see what is given in the statement above. That is the hypothesis and what we need to prove. We are given a triangle PQR. एक ट्रायंगल हमें PQR given है. आप इस साइड में देखेंगे एंगल 1 2 3 है यहाँ पे ट्रायंगल में. Are the angles of this triangle PQR? If you look at this figure, angle 1, angle 2 and angle 3, right? So अब हमें प्रूव क्या करना है इसमें? हमें प्रूव करना है 180 डिग्री आना चाहिए. 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री, right? इसके लिए we need to do the construction here. Let us draw a line XPY parallel to QR through the opposite vertex P as shown in figure 6.35. So we can use the property related to parallel lines. So XPY is a line. So what we have to do, हमें यहाँ पे P से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है like this, right? And the name of this line is XPY and this line is parallel to QR. ये लाइन QR से पैरेलल होनी चाहिए. So we have to draw a line like this, right? So now look at this figure here. In this is the given in the figure 6.35. So अगर आपने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, कंस्ट्रक्शन किया हम लोगों ने, that line is XY, right? So XY is this line and this line is parallel to QR. ठीक है, ये QR के पैरेलल है. अब आप देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसको एंगल 4 ले लिया है, इसको एंगल 5, ये एंगल 1. So what is the sum of angle 4 + 1 + 5 is equal to 180 degree. Why? 180 degree. The reason is Linear pair. it's not linear pair. Straight line. Yes, it's a straight line. पेयर, लीनियर पेयर में क्या होता है, पेयर होता है, दो एंगल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे तीन एंगल्स आ गए थे. सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन. यस, सो हमने 4 + 1 + 5 180 ले लिया. अब आप देखेंगे XPY QR के पैरेलल है, ओके, एंड PQ एंड PR आर ट्रांसवर्सल. सो PQ क्या है, ट्रांसवर्सल है. इफ दिस टू लाइंस आर पैरेलल, अगर आप देखेंगे ये लाइन, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूं अगर इस तरह से समझें, तो देन दिस PQ इज ट्रांसवर्सल, राइट? ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा. लेट मी रब दिस. ओके, नाउ अगर आप देखिए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2. व्हाई? एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3. व्हाई? Remember the properties of the transversal. So alternate angles. Yes, absolutely right. It is alternate interior angles. Yes, right. 4 को 2 के इक्वल होगा और 5 3 के इक्वल होगा. अब इसमें देखिए यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में 4 की जगह पे 2 रिप्लेस कर दिया है और 5 की जगह पे 3 रिप्लेस कर दिया है. क्यों? क्योंकि 4 किसके इक्वल है, 2 के, और 5 किसके इक्वल है, 3 के. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो 1 + 2 + 3 कितना आ गया है, 180 डिग्री. यही तो हमें प्रूव भी करना था, राइट? लेट मी टेल यू अगेन वन टाइम व्हाट वी हैव डन. हमने क्या किया, देखो यहाँ पे लिखता हूं. हमने 1 को और 4 को और 5 को ले लिया 180 डिग्री. ठीक है जी. अब 1 को और 4 की जगह पे लिख दिया 2 और 5 की जगह पे लिख दिया 3. ये आ गया 180. ये हमें प्रूव करना था. 4 को 2 के इक्वल क्यों लिया हमने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये. और 5 को 3 के इक्वल क्यों लिया, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. सो दैट्स इट. दिस इज द प्रूफ, right? I hope this proof is clear to you. It is easy to prove it. Recall that you have studied about the formation of exterior angle of a triangle in the earlier classes. आपने एक exterior angle के बारे में भी पढ़ा है earlier classes में. Look at this figure 6.3. Side QR is produced to point as
PRS is called an exterior angles. So look at this figure here on the next page. Look at this figure. इस साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया है, जो साइड QR थी ट्रायंगल की, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। एक्सटेंड करने पे क्या हुआ, आप देखेंगे तो ये एंगल जो 4 है, दिस एंगल 4 इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, राइट। और एक थ्योरम हम लोगों ने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ी थी हम लोगों ने, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, 1 और 2 का सम होगा। एंगल 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो आप यहाँ पे देखिए, इज 3 प्लस 4 इज 180 डिग्री, 3 प्लस 4 180 डिग्री के इक्वल होगा क्या? यस होगा। व्हाट इज द रीजन why this 3 and 4 is 180? What is the reason why? Anyone here, could you please tell me the reason for this? Sir, because it is forming a straight line. Forming a straight line. Yes, it is forming a straight line also. Anyone else? हाँ, जोर से बोलो, सही बोल रहे हैं आप। लीनियर पेयर। कौन बता रहे हैं? ओके, वेरी गुड। इट इज 3 प्लस 4 इज लीनियर पेयर, ये एक लीनियर पेयर एंगल्स हैं, तो इट इज 180 डिग्री। और वी कैन से दैट स्ट्रेट लाइन ऑल्सो। ऑल्सो सी दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है? 180 डिग्री। 1 प्लस 2 प्लस 3 180, वाई? Because of angle sum property. यस, एंगल सम प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने डिस्कस की। अब आप इक्वेशन 1 और 2 से देखिए, 3 प्लस 4 इज 180, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज 180। तो अगर आप इन इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, इफ यू कंपेयर दिस, यहाँ पे देखिए आप, राइट साइड में 180 है, हाँ जी 180 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है, तो 1 प्लस 2 किसके इक्वल आना चाहिए? 4 के, तभी तो इक्वल हो पाएंगे। सो 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2। So this result can be stated in the form of a theorem as given below. ये थ्योरम आप पहले भी पढ़ चुके हैं। This is called as exterior angle थ्योरम बोल सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखी थी। 4 क्या होगा? The exterior angle is equal to the sum of the two interior opposite angle and this is the proof of this theorem. So यहाँ से हमें थ्योरम मिली है। If a side of a triangle is produced, then exterior angle form is equal to the sum of the two interior opposite angle। जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, एक्सटीरियर एंगल का मतलब जो ट्रायंगल से बाहर बनता है, आप देखेंगे ये एंगल ट्रायंगल से बाहर बन रहा है, एंगल 4 ट्रायंगल से बाहर बन रहा है, तो इसीलिए इसको एक्सटीरियर एंगल बोल रहे हैं, राइट। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल। तो 1 और 2 के, 3 को नहीं लेते, जो इसके पास में है उसको नहीं लेना, अपोजिट इसके सामने वाले। तो 1 के और 2 के इक्वल होगा एंगल 4। तो एंगल 4 किसके इक्वल होगा? 1 प्लस 2, राइट। सो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल is equal to the sum of the two interior opposite angle. It is obvious from the above statement that exterior angle of a triangle is greater than either of the interior opposite angle. ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल 4, वो 1 से भी बड़ा होगा और वो 2 से भी बड़ा होगा। Why? Because एक्सटीरियर एंगल 4 1 प्लस 2 होता है, दोनों को ऐड करके 4 आता है, राइट। अगर दो नंबर्स को ऐड करके 4 आता है तो उस केस में क्या होता है? दैट नंबर इज ग्रेटर। मान लीजिए यहाँ पे 6 है, ये 2 है और ये 3, ये है 4, तो जो 6 होगा, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 6 इस 2 से भी बड़ा होगा, इस 4 से भी बड़ा होगा, क्योंकि उन दोनों को ऐड करके 6 आया है, ठीक है। सो लाइक दिस एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 1 एंड एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 2 also. It is the obvious thing. So it is written here, it is obvious from the above statement, exterior angle is
greater than either of the interior opposite angle. दोनों interior opposite angle से बड़ा होता है exterior angle. So this is the exterior angle. और 102 क्या है? 102 है इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर कैसे? सर जो ये अपोजिट. चैप्टर है, इंटीरियर अपोजिट एंगल. यस. सर जो ये चैप्टर है इसमें हमें क्वेश्चंस में क्या थ्योरम भी पूछ सकते हैं अलग अलग? क्वेश्चन देके थ्योरम भी पूछ सकते हैं. क्या कहना चाहते हैं आप? दोबारा से बोलिए. आप आई मीन सर इस चैप्टर के क्वेश्चंस जब होंगे, हमारा टेस्ट होगा, तो फिर सर क्या हमें थ्योरम भी आ सकते हैं कि हमें थ्योरम लिखो या फिर थ्योरम एक एग्जांपल के थ्रू बताओ? अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि थ्योरम लिखो. थ्योरम लिखने के लिए नहीं आएगी. जैसे कि मैं थ्योरम का प्रूफ Okay, करा रहा sir. हूँ यहाँ पे. जैसे मैंने एंगल सम का प्रूफ कराया, तो आपको ऐसे दे सकते हैं यहाँ पे कि प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो आपको थ्योरम का Okay, प्रूफ sir. करना पड़े. थ्योरम तो वो लिख के ही देंगे आपको. ये बोल सकते हैं कि प्रूव दैट. लेकिन थ्योरम्स एग्जाम में पेपर में बहुत कम आती हैं. ठीक है. तो थ्योरम्स Okay, हम लोग sir. क्वेश्चंस को यूज करने में, इनको क्वेश्चंस को सोल्व करने में इनको हम लोग यूज करते हैं. जनरली थ्योरम एग्जाम पेपर में नहीं आती हैं. और अगर बाय चांस आएगी भी तो इस तरह से आएगी कि एंगल सम ट्रायंगल के एंगल का सम 180 प्रूव करो. तो आपको ये वाला चीजें लिखनी है जो अभी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है. So I hope this thing is clear to you. Exterior angle is equal to the interior opposite angle, and one theorem we have discussed, that angle sum theorem, angle sum property, the sum of the angle of triangle is the sum of all the three angle of a triangle is 180 degree.